Hello students, I am Dr. Balkis Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the marketing research process. And the marketing research process involves 6 steps. First is problem definition, and second is development of an approach to the problem. Then research design formulation, and the fourth point is fieldwork or data collection. Then data preparation and analysis, and last point is report preparation and presentation. First of all, I will discuss the first step, that is problem definition. The first step in marketing research project is to define the problem. In defining the problem, the researcher should take into account the purpose of the study, the relevant background information, the information needed, and how it will be used in decision making. And the problem definition involves discussion with the decision makers, interviews with the industry experts, and analysis of the secondary data. Secondary data means which is already collected by some other person or some government organizations. So प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है कि आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च. Research means to find something new. Re means again, to find something new again. So problem definition is one of the most important step in research process. The second is development of an approach to the problem. It includes formulating an objective or theoretical framework, analytical models, research questions and hypotheses, and identifying the information needed. आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मींस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपने देखना है कि एडवर्टाइजमेंट का सेल्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट बढ़ रहा है, आपने वो चीज स्टडी करनी है. या फिर आपने देखना है कि अगर हम इस मार्केट को, इन कस्टमर्स को अगर हम टारगेट करते हैं तो कौन कौन सी हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. The customer may be children, young age group people and old age group people. The market may be rural marketing and urban market. So first of all, you have to develop an approach to the problem. Then on the basis of past studies, you will define your objective. कि पहले जो स्टडीज हो चुकी हैं क्या उनमें वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल तो नहीं हुआ. अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है देन आपको दोबारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. फिर तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे आप वो स्ट्रेटजीज, वो मार्केटिंग टैक्टिक्स आप फॉलो करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो. तो आपने वो अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है जो अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, दैट इज समथिंग न्यू. The next is research design formulation. Research design is a framework for conducting the marketing research project. It details the procedures necessary for obtaining the required information. For this purpose, design a study that will test the hypothesis. अब अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो जैसे आपने पहले स्टैट्स में पढ़े हैं, null hypothesis, alternate hypothesis. Hypothesis क्या होते हैं? Basically these are the assumptions. आप assume करते हो कि इस फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पे पड़ेगा, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि इस फैक्टर का इम्पैक्ट है या नहीं है. तो आपने क्या करना होता है, तो फिर आप रिसर्च करते हो इम्पैक्ट को चेक करने के लिए. तो आपने देखना है, जैसे हम अगर एक मॉडल लेते हैं कि उस मॉडल में है कि एज ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. अगर हम देखना कि हमारी जो सेल्स को क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि एज ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लाइक अदर. लेकिन सबसे जरा फैक्टर कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते. आपको कैसे बताना पड़ेगा? थ्रू रिसर्च.
तो आप डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा कलेक्शन के बाद डेटा को एनालाइज करोगे, देन फिर आप जो पास्ट स्टडीज है, पहले आपने क्या करना, जो पास्ट स्टडीज है, अगर हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे अभी, जो पास्ट स्टडीज है आपने उसके बेसिस पे अपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने हैं कि ऐसा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट स्टडीज। तो फिर आपने जैसे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इम्पैक्ट। जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बोलता है कि देयर इज इम्पैक्ट ऑफ द फैक्टर on the other factor. So you have to check the hypothesis and hypothesis check करने के बाद ही आपको results मिलेंगे. The next is field work और data collection. अब हमने hypothesis अपने fix कर दिए, तो उसके बाद next हमने क्या करना होता है कि हमने data collection करनी है. तो डेटा कलेक्शन करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हो। लाइक अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू करनी है, आप वन बाय वन हर एक पर्सन को मिलके उससे क्वेश्चन फिल करवाओगे। देन आजकल इंटरनेट का टाइम है, तो आप ईमेल्स के थ्रू क्वेश्चन फिल करवा लोगे। टेलीफोनिकली आप इंटरव्यूज लेके क्वेश्चन फिल करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि आप जैसे अगर आपने कोई शॉपिंग ओरिएंटेशन की बात करनी है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव किसी मॉल के साथ रिलेटेड है, उस केस में क्या होता है कि आपने देखना है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो वेज हैं, आप अपनी टीम लगा सकते हो जो डेटा कलेक्शन का काम करती है। तो आपने जब डेटा कलेक्शन कर लिया, लेकिन डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेटा कलेक्शन डेटा की क्वालिटी के ऊपर जो आपके रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज डेटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा कलेक्शन का कोई यूज नहीं है अगर आप उसको डेटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर नहीं करते। तो आपने इसमें क्या करना, आप एडिटिंग करोगे, कोडिंग करोगे। जैसे अगर आपने कभी क्वेश्चनर्स फिल किए होंगे, कभी सर्वे फॉर्म फिल किया होगा, लाइक जैसे लिखते हैं कि 1 to 5 from strongly agree to strongly disagree, from strongly disagree to strongly agree, right? तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने जो भी आपको आंसर दिए हैं, तो आप उस डेटा की कोडिंग करते हो, उनको नंबर असाइन करते हो, जैसे 1 2 नंबर, राइट? जैसे हम बात करें मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको उसको एक नंबर असाइन करना पड़ेगा। लाइक अगर आप मेल को असाइन नंबर कर दो 0 और फीमेल को असाइन कर दो नंबर 1। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या, डेटा आपका अब पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अब उसको एनालाइज करोगे थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके। तो जो भी आप जैसे स्टैट्स की टेक्निक्स आपने पढ़ी है पहले, टी टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप जो डिफरेंट टेक्निक्स है उनको आप अप्लाई करके डेटा को एनालाइज करोगे। द लास्ट स्टेप इज रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आपने पूरा अपना वर्क फिनिश कर लिया, लेकिन अभी आपका वर्क पूरा कंप्लीट नहीं है, राइट? तो आपको अब क्या करना पड़ता है, तो आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उसको एक रिटन रिपोर्ट में प्रेजेंट करोगे। जो भी आपने काम किया है फ्रॉम प्रॉब्लम डेफिनेशन टू डेटा एनालिसिस, आप उनको वन बाय वन एक रिपोर्ट में प्रेजेंट करोगे। लाइक आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने कौन सी रिसर्च डिज़ाइन फॉलो किया है, या डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन लाइक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आज इनको हमने टच नहीं करना इन पॉइंट्स को। देन उसके बाद आपने डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन आपने कैसे की, आपने थ्रू पर्सनल इंटरव्यू की है, या फिर आपने टेलीफोनिकली की है, या ईमेल्स के थ्रू की है, जो भी आपने मोड चूज किया है आप उसको लिखोगे। देन उसको आपने डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस, कौन सी टेक्निक्स लगाई हैं, लाइक फैक्टर एनालिसिस लगाया, अनोवा लगाया, आपने क्या लगाया, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव वेरी करते हैं।
देन उसके बाद आपने रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी है, उसको प्रेजेंट करना है एक प्रॉपर वे में, जैसे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कॉलेज में आके सबमिट करवाते हो, कि वो आपकी जो रिपोर्ट है वो आगे फर्दर नेक्स्ट पार्टीज है जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हेल्प करती है, और आप उससे अपना बेटर सोल्यूशन जो है एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, राइट। होप माय लेक्चर इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स।